Follow us to stay updated on debates, discussions, facts, and tips about health. Click on the subscribe button and the bell icon for latest updates. Skincare holds paramount significance in safeguarding the health comfort of our children, and the advent of winter introduces unique challenges that require our utmost attention. The cold, dry air of winter can be particularly harsh on the delicate skin of children, often leading to issues such as dryness, redness, and increased sensitivity. As caregivers, parents, and advocates for the well being of our little ones, it becomes imperative to understand the distinct impact of winter season on their skin. In this discussion, we aim to unravel intricacies of winter skin care for children, exploring proactive measures to counteract the adverse effects of the season and ensure that their skin remains resilient, nourished, and protected throughout the colder months. Welcome, everyone. I'm Dr. Soumya Saluja from Zip Media, and today we are joined by renowned dermatologist Dr. Ratnakar Shukla to discuss the crucial topic of winter skincare for children. Dr. Ratnakar Shukla is a highly skilled medical professional specializing in dermatology, cosmetology, and hair transplant surgery. With over 13 years of experience in the field, Dr. Shukla currently serves as a consultant at Dermagenex, where he actively contributes to the advancements of dermatological care. Throughout his career, Sir has held prominent positions, including senior resident roles at AIIMS Patna and Gorakhpur, as well as at BRD Medical College in Gorakhpur. His extensive clinical experience has provided him with a deep understanding of various dermatological conditions and their respective treatments. In addition to his clinical practice, Dr. Shukla is recognized for his valuable contributions to academia as the assistant editor of the Indian Journal of Skin Allergy and the Indian Journal of Pediatric Dermatology, where Sir plays a substantial role in the development and dissemination of knowledge in the field of dermatology. Dr. Shukla, Tip Media welcomes you, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for joining us today, sir. एंड सर हम सब जानते हैं कि विंटर सीजन अपने साथ में बहुत सारे challenges के साथ आता है. It can be a very challenging season for everyone, including children. So with that in mind, I'd like to start this discussion by asking that how does cold winter weather impact the skin of children? और इस particular season में ऐसी क्या conditions है जो स्किन इश्यूज हैं जो बच्चों के साथ हो सकते हैं? ठीक है. तो first तो in this cold weather, the children skin is very much sensitive when it is compared to adult, जी. because the children skin barrier is less developed. तो होता क्या है, उनका barrier less developed होता है. That's why they are more prone to harsh condition. The eczema condition, the atopic dermatitis, and the allergic condition are much more common in children skin, because their barrier and their even this ability to maintain the barrier is not that much developed as in the adult population. In addition to this, the children body surface area वो काफी ज्यादा होता है compared to the body mass ratio when it is compared to adult. So जी. body surface area per body mass ratio index is much more high in children when compared to adult. That's why the ability to heat loss is much more pronounced in the children's skin. जी. All these factors together contributing to much more heat loss, much more risk of dryness and irritation. जी. प्लस क्या होता है, चिल्ड्रन हैज द एबिलिटी कि उनको आउटडोर एक्टिविटीज करनी होती है. दे लाइक टू इन्वॉल्व देमसेल्फ इन स्पोर्ट्स इवन इन कोल्ड कंडीशन. तो बिकॉज ऑफ दैट देयर स्किन इज मच मोर एक्सपोज टू द कोल्ड, विंडी एंड हार्श कंडीशन. तो जितना ज्यादा एक्सपोजर होगा उतना ज्यादा हमारी स्किन से मॉइस्चर इवेपोरेट होगा,
मॉइस्चर इवेपोरेट होगा तो ड्राइनेस एंड इरिटेशन बहुत ज्यादा होगा। जी सो जो कॉमन इश्यूज हैं बच्चों के अंदर में, स्पेशली इन विंटर कंडीशन में, स्किन ड्राइनेस, जी वो बहुत कॉमन है। इनफैक्ट इन एवरी चाइल्ड the skin is on the dry side in the winter condition if he or she is not taking any applying any moisturizer or anything. जी And even the lips are chapped, plus the children has the ability or this they have this tendency to regular licking their lips. That's why उधर पे भी मॉइस्चर जाता है तो chapped lips होता है। प्लस द सेंसिटिव चिल्ड्रन, उनमें हम्म, एटोपिक डर्मेटाइटिस की टेंडेंसी बढ़ जाती है, एक्जिमा के फ्लेयर अप बहुत कॉमन हो जाते हैं विंटर में। एंड इफ पीपल आर एक्सपोज टू द एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन तो उनको फ्रॉस्ट बाइट एंड फ्रॉस्ट निप होता है। ईयर्स जो भी कॉमन एक्सपोज साइट है, लाइक ईयर्स हो गए, नोज टिप हो गए, लिप्स हो जी गई, फिंगर हो गए, all these जी areas are much prone to redness, irritation and discoloration and tissue changes, all these. So जी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जितना भी कोल्ड कंडीशन हो तो हम बच्चे को स्पेशली जिस सेंसिटिव एरियाज पे प्रोटेक्शन यूज करें, मॉइस्चराइजर जी करें। तो ये सारी चीजें दोनों में कॉमन है, एडल्ट स्किन में भी और चिल्ड्रन स्किन में। बट children skin has a lesser capacity to heal it out compared to adult because they have a larger body surface area, lesser barrier development. That's why they are more at risk of developing all these features. जी जैसा कि आपने अभी बताया कि बच्चों की स्किन थोड़ी कंपैरेटिवली ज्यादा सेंसिटिव होती है, प्लस उनकी जो फिंगर टिप्स हैं प्रोबेबली, जो उनका लेग्स और हैंड्स और इवन फेस का जो एरिया है उनको वो थोड़े ज्यादा सेंसिटिव हैं इन कंपैरिजन टू अडल्ट्स। तो क्या फिर कोई की डिफरेंसेस होंगे विंटर एंड समर स्किन केयर रूटीन्स में फॉर चिल्ड्रन, जिसके हिसाब से पेरेंट्स अपनी स्किन केयर रूटीन को या अपनी बच्चों का ध्यान रखने के तरीके में कुछ चेंजेस ला सकें, स्पेशली फॉर कोल्ड मंथ्स? जी। तो समर में क्या होता है कि इन कोल्डर कंडीशन जो विंड होता है दैट इज मॉइस्चर इज लैकिंग इन द कोल्ड कंडीशन, जी और समर कंडीशन में द मॉइस्चर इज प्रेजेंट। तो जी समर में जो मॉइस्चराइजर हम यूज करते हैं दैट इज मेनली वाटर बेस्ड, और जी जो कोल्ड कंडीशन में हमको यूज करना चाहिए दैट मॉइस्चराइजर शुड बी रिचर एंड थिकर मॉइस्चराइजर, स्पेशली ऑल द ceramide एंड ऑल ingredient जी मिक्स। जी एंड स्पेशली इन कोल्ड कंडीशन हम क्या करते हैं टू प्रोटेक्ट आवर चाइल्ड, हम बहुत सारे कपड़े पहना देते हैं, दैट शुड नॉट जी बी। समटाइम्स उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे को व्हेन ही और शी इज इन्वॉल्व इन एक्टिविटी या वो बाहर कोई गेम खेल रहा है तो उसकी बॉडी हीट जनरेट करेगी, एंड बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ क्लॉथ देयर इज अ स्वेटिंग एंड ऑल, तो उसकी वजह से भी ड्राइनेस एंड इरिटेशन होता है। तो हमें जी कुछ बातों का ध्यान रखना है। एक, तो कोल्ड कंडीशन में जो भी सेंसिटिव एरिया है उनका प्रॉपर टेक केयर, जैसे जी हैंड है तो ग्लव्स या मिटन्स पहनना चाहिए, फीट है उसके लिए वुलन सॉक्स या मॉइस्चर विकिंग सॉक्स पहनने चाहिए, प्रॉपरली फुटवियर पहनने चाहिए। जी ईयर्स जो भी सेंसिटिव एरिया है तो उनको ईयर मफ से या हैट से प्रोटेक्ट करना चाहिए। प्लस जो फैब्रिक भी हम पहनते हैं तो अंदर की लेयर में इट शुड बी इन द लेयर्ड क्लॉथिंग, तो फर्स्ट लेयर शुड बी अ फैब्रिकेटेड ब्रीदेबल क्लॉथ, और जी बाहर की तरफ में हमें इंसुलेटेड क्लॉथ पहनना चाहिए। और वो जी भी ध्यान देना चाहिए कि अगर आपका बच्चा कंप्लेन कर रहा है, उसको इरिटेशन हो रहा है, तो आप बाहर के क्लॉथ को रिमूव कर दीजिए। तो there should be a fine balance between the cloth and this protection. So you should walk that path जहाँ पे आपके बच्चा वार्म एंड प्रोटेक्टेड फील करे बट उसको कोई डिस्कम्फर्ट भी ना हो। जी अभी जैसे आपने बताया कि विंटर्स में जो मॉइस्चराइजर्स हैं या फिर क्रीम्स हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े थिक होने चाहिए और थोड़े यस। से रिच होने चाहिए इन कंपैरिजन टू व्हाट वी यूज इन द समर्स। सो कुड यू प्लीज हाईलाइट द इंग्रेडिएंट्स दैट द पेरेंट्स शुड लुक फॉर और अवॉइड इन सच प्रोडक्ट्स? यस। तो जो विंटर मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए विंटर कंडीशन में या ठंडी के मौसम में,
उसमें हमेक्टेंट होना चाहिए। हमेक्टेंट ग्लिसरीन, हाइलुरोनिक एसिड एंड सॉर्बिट्रॉल, ये सारे कंपोनेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, वाटर को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी जी वजह से एक मॉइस्चर बनता है। दूसरी जी चीजें इमोलिएंट होनी चाहिए। इमोलिएंट के अंदर में बहुत सारे सिया बटर, कोको बटर, मैंगो बटर एंड देन जोजोबा ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऑल दीज प्रोडक्ट रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, मॉइस्चर को सील कर देते हैं, मॉइस्चर को इवेपोरेट नहीं होने देते हैं। Then the third thing is natural lipid, which is ceramide and the NMF. NMF is natural moisturizing factor। तो वो हमारे स्किन के सेल्स के बीच में रहता है, उसका रिप्लेनिशमेंट होना चाहिए थ्रू सिरेमाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर। तो उसकी वजह से क्या है, स्किन की जो इलास्टिसिटी और मॉइस्चरिंग हाइड्रेटिंग कैपेसिटी है वो मेंटेन रहती है। प्लस हमें ऑक्लूसिव मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हैं, जैसे पेट्रोलेटम होता है या फिर डाइमेथिकोन होता है। तो ये सारी चीजें मेनली जो विंटर में हमें मॉइस्चराइजर यूज करना है उन सब में होना चाहिए। प्लस हम बच्चे को जो है हाइपो एलर्जिक और फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, जिससे उनकी स्किन अगर सेंसिटिव भी है तो उनको कोई एलर्जिक रिएक्शन ना हो। सो मेनली इन कंपोनेंट पे ध्यान देना चाहिए विंटर के केस, विंटर सीजन में अगर बच्चों को जो है मॉइस्चराइजर यूज करते समय। ओके। एंड क्या सन प्रोटेक्शन विंटर्स में भी उतनी ही जरूरी होती है जितनी कि हम समर्स में उसको मान के चलते हैं? और अगर ऐसा है, then how often should parents apply sunscreen to their children's skin during the winter season? जी, सन एक्सपोजर तो विंटर और समर दोनों में होता है। विंटर में जी जस्ट क्लाउडी कंडीशन हो जाता है, बट सनस्क्रीन एप्लीकेशन इज अ मस्ट। क्योंकि जी क्या होता है कि जो सन एक्सपोजर होता है वो इन बिटवीन 9 AM टू 4 PM ज्यादा एक्सपोज होता है, और उसके अंदर में यूवी लाइट होती है, जिसकी वजह से अगर रेगुलर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर यूवी लाइट का हो तो हमारी स्किन डैमेज होती है, स्किन टैनिंग होती है, स्किन पे कुछ पिगमेंटेशन मार्क्स आएंगे। प्लस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर हम कुछ प्रोटेक्टिवनेस नहीं यूज कर रहे हैं तो फिर स्किन कैंसर के रिस्क भी बढ़ जाते हैं इन सर्टेन इंडिविजुअल। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर हमें सन एक्सपोजर से अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। जी सेम कंडीशन में ऐसा भी नहीं है कि स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन चाहिए। मॉर्निंग टाइम पे आधे से 1 घंटे के लिए सन एक्सपोजर इज नेसेसरी, जिससे कि हमारी बॉडी में विटामिन डी वगैरह नॉर्मली सब कुछ सिंथेसाइज हो। तो इट शुड बी अगेन इन अ लिमिटेड वे, और सनस्क्रीन एप्लीकेशन मस्ट है। ठंडी के मौसम में अगर जो लोग ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ स्नोफॉल होता है, या जहाँ पे स्नो है, या आप घूमने के लिए भी जा रहे हैं किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है, तो स्नो क्या करता है, बर्फ की वजह से यूवी रेज जो है वो रिफ्लेक्ट होती हैं, जिनकी वजह से उनका डैमेज और भी ज्यादा प्रोनाउंस हो जाता है। तो जी अगर आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं, स्पेशली अपनी फैमिली के साथ, बच्चों को साथ लेकर के, तो आपको और भी ज्यादा ध्यान देना है कि आपको सनस्क्रीन रेगुलर अप्लाई करना है। अच्छा, सनस्क्रीन अप्लाई करने में भी जो उसका इफेक्ट रहता है वो 2 से 3 घंटे तक रहता है। तो आपको एटलीस्ट 3 टाइम्स इन अ डे सनस्क्रीन मस्ट है। ऐसा नहीं है कि सुबह आपने एक बार 8 बजे लगा लिया और फिर आप दिन जी भर के लिए आप घूम सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो आपको 8 to 9 AM के बीच में, देन अगेन 11 to 12 के बीच में, देन अगेन 2 to 3 के बीच में, सो दैट पूरे दिन में आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहे। और सनस्क्रीन जो यूज होना चाहिए वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए, जो यूवी ए यूवी बी दोनों को कवर करे, विद SPF ऑफ 30 या उससे ज्यादा। अगर आप ये यूज करते हैं तो आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहेगी, और आप सन एक्सपोजर की वजह से होने वाले जो भी हार्मफुल इफेक्ट है उनसे आप अपने स्किन को और अपने बच्चों की स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जी और क्या इसमें डाइट का भी कोई रोल हो सकता है इन मेंटेनिंग अ हेल्दी स्किन फॉर चिल्ड्रन ड्यूरिंग द विंटर सीजन? एंड I mean, are there any particular foods that could contribute to skin hydration and protection in this harsh season? जी, डाइट का बिल्कुल रोल है, इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि आपकी स्किन की हेल्थ डिपेंड करती है आपके डाइट पे। तो अगर अंदर जी से ही उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं होगा तो वो डैमेज ही होगी, बाहर से आप जी कितना भी प्रोटेक्ट कर लें। तो एक बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस डाइट मस्ट है फॉर जी ऑल योर बॉडी एंड इंक्लूडिंग स्किन एज वेल। जी डाइट
वाटर रिच फूड होना चाहिए जिससे आपको हाइड्रेशन जो है वो मेंटेन रहे, लाइक वाटर रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ककम्बर, टोमेटो, वाटरमेलन, ऑरेंज, दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट. देन हेल्दी फैट्स like omega-3 fatty acid, walnut, almond. Then vitamin C and E rich fruits like citrus fruit, kiwi, berries, seeds, nuts, all these product. And then vitamin A rich product like beta carotene and zinc containing product, legumes, seeds, एंड पपाया, ऑरेंज एंड येलो फ्रूट. सो ये सारी चीजें आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना पड़ेगा इफ यू वांट योर स्किन टू बी हेल्दी. तो इसकी वजह से आपकी स्किन हेल्दी रहेगी, आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी. और आपको प्रोसेस्ड फूड, कैंड फूड, सुगरी स्नैक्स, ये सारी चीजें अवॉइड करना पड़ेगा जिससे कि आपकी बॉडी अच्छी रहे, आपका स्किन हेल्थी रहे. और इसके साथ में आपको एक एक्सटर्नल स्किन केयर रूटीन भी फॉलो करना पड़ेगा. अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो डेफिनेटली आपकी स्किन बिल्कुल नॉरिशिंग रहेगी और अच्छी रहेगी. ओके, एंड जस्ट गोइंग टू समराइज एवरीथिंग, क्योंकि अभी हमें पता है कि विंटर सीजन जस्ट शुरू ही हुआ है एंड उसके अपने एक यूनिक चैलेंजेस हैं. तो हाउ शुड पेरेंट्स एडजस्ट देयर विंटर स्किन केयर रूटीन्स टू एड्रेस द यूनिक नीड्स ऑफ एंड सेंसिटिविटीज ऑफ अ चाइल्ड स्किन? ओके, तो देखिए विंटर में कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे कि एक तो जेंटल क्लिंजर यूज करना है. ठीक है, जो कि माइल्ड होना चाहिए, फ्रेग्रेंस फ्री होना चाहिए, सल्फेट पैराबेन फ्री होना चाहिए. ठीक है, कोई भी हार्श केमिकल या फ्रेग्रेंस नहीं यूज करना चाहिए. तो जी. वो आप यूज कर सकते हैं. देन ऑलरेडी मैंने बताया आपको, मॉइस्चराइजर जो है रिच क्रीमी मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए. बाथ जो है वो ल्यूक वार्म वाटर से करना चाहिए और लिमिटेड टाइम के लिए. ऐसा नहीं कि आप बच्चे को आधे एक घंटे के लिए पानी में छोड़ दें, क्योंकि जितना जी. ज्यादा देर वो पानी के कांटेक्ट में रहेगा, वाटर के कांटेक्ट में रहेगा, उतना ज्यादा उसकी स्किन से मॉइस्चर इवेपोरेट होगा. तो जी. लिमिटेड टाइम के लिए बात होना चाहिए. सेंसिटिव एरियाज जो बॉडी के लिए हैं वो सारे प्रोटेक्ट होना चाहिए. ईयर जी. बाय ईयर मफ्स, रेगुलर दिस वियरिंग ऑफ ग्लव्स एंड ऑल. तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करना चाहिए विंटर स्किन केयर में, प्लस बैलेंस डाइट. एंड जी. आपको ध्यान देना है, बच्चा अगर बाहर खेल रहा है तो बहुत ज्यादा देर तक ना खेले. आफ्टर फ्यू मिनट ऑफ टाइम बच्चे को आप अंदर लाइए, वार्म कंडीशन में रखिए. इवन अगर इनसाइड भी आप रख रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान देना है कि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लाइक ब्लोअर एंड हीटर शुड नॉट बी यूज फॉर longer duration of time because that will cause excessive dryness as well. तो वो भी आपको ध्यान देना है कि 15-20 मिनट आपने यूज किया, देन आप स्विच इट ऑफ कर दो. अदरवाइज देयर इज टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, बाहर बहुत कोल्ड है, अंदर आपने बहुत हॉट कर दिया, तो ऑल दिस इफेक्ट विल फर्दर डैमेज ऑन द स्किन. तो आपको एक फाइन बैलेंस बना करके चलना पड़ेगा. जी. Thank you so much for such an insightful session, Dr. Shukla. Thank you so much for थैंक यू. joining us today, sir. Thank you so much, ma'am. Actually, I want to clap for you because you are doing such a great work, breaking the myth, spreading the knowledge and awareness for the general public. And in your mission of doing this, I would considering myself lucky कि मैं कुछ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन शेयर कर पाया, जिससे आपके जो भी व्यूअर्स हैं उनको एटलीस्ट थोड़ा सा दे विल गेट टू नो कि क्या उनको फॉलो करना चाहिए फॉर स्किन केयर रूटीन इन विंटर्स. तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी. Thank you so much. The pleasure is all mine, sir. And I'm hoping थैंक यू सो मच. कि यस. ये डिस्कशन बहुत सारे पेरेंट्स और उनकी फैमिलीज के लिए हेल्पफुल होगा. यस And यस यस yes, sir. And to all यस. the parents out there, please, while taking these preventive measures to ensure winter skincare for children, it requires proactive steps. And I'm hoping that Dr. Shukla's advice might help you all welcome the season with confidence and will encourage you to keep your little ones warm and protected. And for more such informative videos, please subscribe to our channel and press the bell icon for regular updates. Thank you so much once again for joining us today, sir. थैंक यू. एंड वन लास्ट पॉइंट, अगर इन केस इन सब के बावजूद भी अगर आपके बच्चे की स्किन में या आपके स्किन में कुछ भी इशू होता है, तो देन प्लीज कंसल्ट अ बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट. एंड जस्ट डोंट यूज इधर से कुछ आपको किसी ने बता दिया, कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिला, आपने ऑनलाइन कहीं कुछ ऐसा सर्च कर लिया,
और उससे यूज कर रहे हैं और आपकी स्किन डैमेज हो रही है फिर भी आप उसी को यूज कर रहे हैं, तो in case if you are suffering from any skin disease, please consult a board certified dermatologist. With these words, thank you so much. Thank you so Thank much you for so giving much. me an opportunity. Thank you so much.